Welcome. We are at session 14 now. To begin with, some further words. We have seen the patterns of spelling and pronunciation of EA, then AI, IA, then OA, and now today we will do AU and UA. Word families pause and dual. Okay, AU and UA. Shashank. Auth, August, audible, Oracle. author, cause, clause, don't, flaunt, fraud, fraud. Fraught. Akshat. Gone, gauze, haul, on, pause, staunch, taut, tout, wall. These two are almost similar. Taut, taut, taut. Okay, almost same. Next two, Aunt, got, gauge. Why are these two in box? exceptional words. They are exception in sounds. Okay, so this is not aunt, this is aunt, and this is not gauge, this is gauge. Though this is gauze. What is gauge and what is gauze? Gauge, anybody knows? Instrument to measure something. Okay, and gauze is a wire mesh which you use in chemistry experiments. Okay, what family? Dual. Karthik. Actual, actuate, annual, casual, dual, equal, Good. estuary, Estuary. estuary, factual, guava, insinuate, Insinuate. insinuate, jaguar, Good. Akshat. Manual, mortuary, punctual, quality, quantify, quantity, quarrel, ritual, Okay, go on. sanctuary, Sanctuary, yes. textual, virtual, visual. Okay. Quite a few difficult new words. Look up dictionary and find out the meaning of whichever word you find interesting. Okay, I will not tell you. Okay, you should have some practice of looking up dictionary. Okay. Now, we have earlier seen third forms in which the third form of verb appears as an adjective that comes before the noun to qualify the noun, or sometimes after the noun to qualify this noun, when after even that some more things come which are connected to this because of its character rooted in the original verb. Okay. So, the way phrases and objects connect to verb, like that the third form adjective also can connect phrases and objects. Okay. So, then we have seen fifth form, which are most of the time like adjectives or adverbs. Okay. And this same form, fifth form of verb, can sometime operate as noun also. Okay. And then another form of verb sometimes may come in order to operate as adverb. Okay. Typically to show purpose, and that same form which appears as adverb to show purpose, the same form sometimes can operate as noun also. So, these forms are a little confusing, and you have to see the context to decide what operation it is doing at a particular time. Okay. So, that is why the title of this is adverbs, nouns looking like verbs. Okay. There are things which look like verbs because they have originated from verbs, but they fulfill different purposes. They operate as nouns, adverbs. Okay. So, Shashank. We eat to stay alive. To stay को निकाल दो. We eat alive. No, we eat, sorry, to stay alive. To stay alive को निकाल दो. We eat. मतलब हम खाते हैं. why?
क्यों खाते हो? जीने के लिए, ब्यूटीफुल, टू स्टे अलाइव। सो क्यों का जवाब हुआ। सो दिस इज ऑपरेटिंग लाइक एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, I asked her to meet you. यहीं पर सेंटेंस बंद करें। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। या मैंने उसे कहा। क्या कहा? तुमसे मिलने को, टू मीट यू, ठीक है। मैंने उसको कहा, क्या कहा? क्या का जवाब है तुमसे मिलने को, ठीक है। तो क्या का जवाब ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई आस्क्ड हर ए क्वेश्चन, आई आस्क्ड हर हर नेम, आई आस्क्ड हर my name for that matter. I asked her whatever. Okay. So I asked her the name of her father. I asked her a question. Okay. So question noun है, the name noun है, ठीक है। उसकी जगह पे यहाँ पर बोला गया कि I asked her, क्या पूछा था? मैंने उसको पूछा था, कहा था, मैंने उसे कहा था तुमसे मिलने को, ठीक है। तो ये what का जवाब आया, तो यहाँ पर नाउन की तरह ऑपरेट कर रहा है। वर्ब का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, Do you want to learn English? डू यू वांट बोल के चुप रहेंगे तो बोलेगा व्हाट, क्या वांट करने की बात हो रही है? टू लर्न इंग्लिश, ये व्हाट का जवाब है। सीखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो? सो व्हाट डू यू वांट, सो डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। सो ये जो है, डू यू वांट मिल्क, डू यू वांट ए गिफ्ट, ओके। सो डू यू वांट समथिंग, इट इज इन द प्लेस ऑफ नाउन, ओके। सो डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, so that to learn English, basically to learn is operating as a noun. It is sitting in the place where milk could sit, gift could sit, book could sit, okay. So in place of book, gift, milk, right now we have to learn, सीखना। क्या चाहने की बात हो रही है? सीखना, ठीक है। नेक्स्ट, Go to the shop to buy some snacks. ओके, Go to the shop. गो टू द शॉप, दुकान जाओ, किस लिए? क्यों, क्यों का जवाब है। यहाँ फिर एडवर्ब आ रहा है, सबसे ऊपर वाले में और सबसे नीचे वाले में। वो पर्पस दिखाने के लिए आया था, टू स्टे, टू बाई, और इन दोनों में क्या का जवाब में आया? टू मीट, टू लर्न। लेकिन फॉर्म एक ही है, टू समथिंग, ओके। सो टू वर्ब इस फॉर्म में जो है वो नाउन की तरह ऐसे बैठ सकता है, और नहीं तो एडवर्ब की तरह बैठ सकता है, टिपिकली पर्पस बताने के लिए, क्यों का जवाब देने के लिए। तो क्यों का जवाब देने के लिए एडवर्ब जैसा बैठ रहा है, क्या का जवाब देने के लिए नाउन जैसा बैठ रहा है। अभी मैं कह रहा था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम जो करता है वो नाउन होता है। आगे देखो, अक्षत, I like books. व्हाट डू आई लाइक, Books. मैं क्या पसंद करता हूँ? किताबें। नेक्स्ट, I like reading. पढ़ना. मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं क्या पसंद करता हूँ? पढ़ना. पढ़ना। जहाँ पर एक नाउन आ रहा था वहाँ पर रीडिंग आ रहा है, फिफ्थ फॉर्म वर्ब का, ठीक है। पहले देखा था एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। अब यही चीज जो है फिफ्थ फॉर्म जो है नाउन की तरह यूज हुआ, ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है क्या के जवाब के तौर पे। आगे देखो, I like to read. मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है। ये रीडिंग के सेंस में ही आया, टू रीड, रीड करने का जो एक्शन है, पढ़ने का जो एक्शन है, पठन, हाँ। सो दैट इज रीडिंग या टू रीड, ठीक है। अब यहाँ He started the car. उसने कार स्टार्ट करी. क्या स्टार्ट किया? हाँ हाँ, गुड। क्या चालू किया? कार. कार। अगला क्या चालू किया? He started speaking. उसने बोलना चालू किया. करेक्ट। क्या चालू किया? बोलना। कार की जगह पे बोलना, ठीक है। तो ये नाउन का काम कर रहा है, देखो फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। He Next. started to cry. लो, रोना. उसने रोना चालू किया। अब क्या चालू किया के जवाब में है रोना, ठीक है। सो टू क्राई, ये देखो टू वर्ब, जिस हालत में ये आ रहा था उसी हालत में ये भी आ रहा है, तो यहाँ पर नाउन की तरह आ रहा है। क्या स्टार्ट किया? रोना, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट की तरह जगह पे आया है, तीन नाउन यहाँ पर, बुक्स, रीडिंग, टू रीड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है तीन नाउन, द कार, स्पीकिंग, टू क्राई, ठीक है। अच्छा, अब सब्जेक्ट की जगह देखो, कार्तिक
Theft is shameful. Shameful. व्हाट इज शेमफुल? Theft. मतलब चोर. चोरी करना, चोरी करना. ठीक है, शर्म. थेफ्ट, चोरी, चोरी, चोरी. चोरी शर्मनाक है। क्या शर्मनाक है? यहाँ पर चोरी. ये जो है सब्जेक्ट है, व्हाट इज शेमफुल, हु नहीं, व्हाट है, लेकिन तब भी सब्जेक्ट की जगह पे बैठा है, सेंटेंस का मालिक वही है, उसी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। अगला Stealing is shameful. उसी जगह पे आया, अब चोरी करना हुआ, ठीक है, चोरी. चोरी करना शर्मनाक है, To steal is shameful. सेम थिंग। तो स्टीलिंग और टू स्टील एक ही अर्थ में यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, The journey ahead will be risky. तेज चलाना. तेज नहीं, तेज नहीं. आगे की यात्रा, आगे की यात्रा मुश्किल है. खतरनाक ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि रिस्क का नहीं, रिस्क जो है ना जोखिम भरा होगा, ठीक है। आगे की यात्रा जोखिम भरी होगी। जोखिम भरी होगी. Going क्या जोखिम भरी होगी? आगे की आगे यात्रा, यात्रा, द जर्नी, ठीक है, नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट है वो सेंटेंस का। Going ahead will be risky. आगे जाना जोखिम भरा होगा, ठीक है। तो जहाँ पर द जर्नी था, यात्रा, वहाँ पर अब गोइंग आ गया, और नहीं तो टू गो अहेड विल बी रिस्की, आगे जाना जोखिम भरा होगा, ठीक है। तो फिफ्थ फॉर्म या टू प्लस वर्ब, ये जो है नाउन की तरह बैठ सकता है, सब्जेक्ट की जगह पे भी बैठ सकता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी बैठ सकता है, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि एडवर्ब की तरह तो बैठता ही है, ठीक है। ओके, चलो एक और सेंटेंस बताते हैं। इस सेंटेंस का इंग्लिश करो, एक मुश्किल है। हाँ देखो, तुमने बोला देयर इज ए प्रॉब्लम, इस टाइप के सेंटेंस में थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। तुमने नोटिस किया है कि हिंदी में था एक मुश्किल है, ठीक है, ए प्रॉब्लम इज बोलेंगे तो उसके बाद फंस जाएंगे, उसके बोलेंगे सामने तो गिर जाएंगे। ए प्रॉब्लम इज बोल के उसके बाद सेंटेंस खत्म नहीं होता है। इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद सेंटेंस खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में इज के केस में अक्सर होता है कि आपको पहले कुछ डाल के, कुछ बेकार सा जो है काम चीज़ डाल के उसके बाद सेंटेंस चालू करना पड़ता है, और बाद में कहीं पर एक्चुअल सब्जेक्ट आ जाता है जो कि सब्जेक्ट की जगह नहीं है। ओके, देयर इज़ ए प्रॉब्लम, इसका हिंदी ये नहीं है कि वहाँ एक प्रॉब्लम है, वहाँ एक समस्या है, ऐसा नहीं है। देयर इज़ ए प्रॉब्लम, देयर इज़ ए समथिंग का मतलब ये नहीं निकालना है कि वहाँ एक प्रॉब्लम है, वहाँ एक समस्या है, ठीक है, एक समस्या है बस। हिंदी में ये सेंटेंस ठीक है, एक समस्या है, लेकिन इंग्लिश में करेंगे तो ए प्रॉब्लम इज बोल के छोड़ नहीं सकता है। तो इंग्लिश में कभी कभी सब्जेक्ट को शुरू में डाल देने पर बाद में सेंटेंस अचानक जाके एक जगह खड़ा हो जाता है जिसके आगे नहीं जा सकते हैं, तो उस हालत में सब्जेक्ट की जगह पे एक जो है ना टोकन रख देना पड़ता है, डमी, हाँ ठीक है। जैसे कि मैं आया नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना टोपी यहाँ पर रख के गया हूँ कि मैं हूँ, तुम लोग इंतज़ार करना, ठीक है। तो वो डमी जो है ना, मेरा टोपी, मेरी टोपी या मेरा झंडा जो है ना लगा है, तो वो डमी है, मुझको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस टाइप का झंडा बना के देयर लगा देते हैं शुरू में, सब्जेक्ट का जगह कैप्चर करने के लिए, ठीक है, और एक्चुअल सब्जेक्ट बाद में आता है। इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। शशांक, देयर इज ए प्रॉब्लम तो तुमने कर ही दिया है, आगे बताओ। There are two more issues for discussion. आगे भी मतलब बताओ। There was a king. अच्छा मतलब वहाँ पे दो और वहाँ पे बोल रहे हो, दो और इश्यूज हैं बातचीत के लिए। बातचीत के लिए दो और मुद्दे हैं, बातचीत के लिए दो और मुद्दे हैं। देखो वहाँ पर से शुरू किया था, कभी नहीं करना, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में इस ये देयर जो है ना वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, ऐसे ही डाल के रखा गया है कि सब्जेक्ट का प्लेस को रिजर्व कर लिया, ठीक है, और एक्चुअल सब्जेक्ट बाद में आएगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? नहीं, इश्यूज, टू मोर इश्यूज इज द सब्जेक्ट। यस, नेक्स्ट। There was a king. यस, एक राजा था। एक राजा था, वहाँ एक राजा था नहीं, एक राजा था, ठीक है। मैंने लोगों को देखा है वहाँ एक राजा था बोलकर ट्रांसलेट करने के लिए, उसके बाद सर खुजला रहे हैं कि क्या हुआ, ठीक है। रेशान, There were many tiger in the forest. देयर वर मेनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट। जंगल में बहुत सारे टाइगर हैं, शेर हैं, बाघ हैं,
जंगल में बहुत बहुत सारे सारे बाघ बाघ हैं। थे, वहां नहीं, ठीक है, वहां नहीं चलेगा, ठीक है। अक्षत, There will be a war. एक युद्ध होगा, एक किस खुशी में, जंग होगी. या युद्ध होगा नहीं तो जंग होगी, एक बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देर भी गया, ए भी गया, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारी फालतू चीजें होती है जिसकी जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। हिंदी में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आगे, There will be riots. रायट्स, Riots after the war. लड़ाई के बाद दंगा होगा. लड़ाई के बाद दंगे होंगे। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, Riots. रायट्स, दंगे। अक्सर लड़ाई के बाद दंगे होते हैं, ठीक है। कार्तिक, अब देखो, ये एक डमी सब्जेक्ट की जगह पे बैठ रहा था देयर। एक और टाइप का डमी सब्जेक्ट बहुत बार आता है, इट। इसको पढ़ो। It is dangerous to play with fire. आग के साथ बिल्कुल सही, खेलना आग के खतरनाक साथ, है। आग से खेलना खतरनाक है। ये इट कहाँ गया, इट डमी था, उसका काम नहीं था, ठीक है। इट जो है सब्जेक्ट का प्लेस कैप्चर करके रिजर्व करके रखा कि सब्जेक्ट आएगा आएगा, नोटिस देके रखा कि सब्जेक्ट आ रहा है बाद में, इंतजार करो। और सब्जेक्ट है क्या, छी 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 छी, एडजेक्टिव का भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्ले कौन बताएगा। प्ले प्ले, प्ले के पहले क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टू प्ले, गुड। सब्जेक्ट इज टू प्ले, खेलना। भाई सवाल पूछो कि क्या खतरनाक है, खेलना। किस चीज के साथ, आग के साथ। To play with fire, you can say is the subject. Yes, to play with fire is the subject. Complete subject is to play with fire. But the keyword of the subject is to play. Yes. Next. Kartik. हाँ, ये पढ़ो। It seems impossible to keep all the things in this bag. इस झोली में, इस झोली में डालना क्यों कर रहे हो, ठीक ठीक, सारी चीजें डालना असंभव है. असंभव लगता है, असंभव. ठीक है। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, गुड। एक्चुअली एज ही मेंशन्ड, टू कीप ऑल द थिंग्स इन दिस बैग। इतना बड़ा चीज जो है ना, एक्चुअली सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। सीम्स इम्पॉसिबल, हाँ, इस सेंटेंस में इट को हटा के वो सारा का सारा सामान यहाँ पर डाल सकते थे, ठीक है। टू कीप ऑल द थिंग्स इन दिस बैग सीम्स इम्पॉसिबल, वो सेंटेंस एकदम सही होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो है सेंटेंस भोला भाला रखने के लिए उतना बड़ा सब्जेक्ट को शुरू में देने पर ना लोग घबरा जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इट बोलकर सब्जेक्ट का जगह रिजर्व करके बात कह के उसके बाद सब्जेक्ट बताया जाता है कि क्या इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, ये सब में किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि यहाँ पर इट जो है किस नाउन की जगह पे बैठ रहा है। इट इज ए प्रोनाउन, इट इज ए प्रोनाउन, हाँ, so it should stand in the place of a noun. But in this kind of sentence, you will never ask for which noun it is standing there. ठीक है, बोलेंगे the cat is good, it is eating fish, so it is standing for the cat. Here you can simply say it is dangerous to play with fire. it को किसी नाउन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही तो डमी आया है, ठीक है। वो बस आगे सब्जेक्ट आएगा, ये खबर देने के लिए आया है। यस सर, अगर इट डमी सब्जेक्ट है तो वो खुद भी तो एक नाउन हो सकता है. खुद नाउन हुए है ही नहीं कभी, वो सब्जेक्ट का जगह बता रहा है, सब्जेक्ट की जगह बता रहा है, ठीक है। इसी तरह से बोलते हैं ये सेंटेंस, इट इज डार्क इनसाइड द रूम. कमरे के अंदर बहुत अंधेरा है. कमरे के अंदर अंधेरा है। कमरे के अंदर क्या है बोलने पर बड़ा अजीब मतलब निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अंधेरा, डार्क, ये एक अजीब सेंटेंस है जो कि नहीं, अजीब सेंटेंस इस मामले में है कि इसमें और कुछ कर नहीं सकते हैं, तुमको इट से शुरू करना ही है, ठीक है। ये बताओ, इट रेन्स हेवली इन अगस्त. अगस्त के महीने होती है, अगस्त में भारी बारिश होती है, ओके। एक और सेंटेंस में बताता हूँ, दे से देयर इज ए घोस्ट इन दैट बिल्डिंग, मतलब ठीक है। अगर मैं, अच्छा अब इसका ट्रांसलेट करो, इस हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेट करो।
कहा जाता है कि ये चाणक्य का घर था. इट इज टोल्ड बोला जाता है, नहीं तो सिंपली बोला जाता है दे से. बिना कुछ पहले रख के जो है, बिना कुछ पहले रख के सीधे दे बोला जा सकता है, दे से. मतलब इट इज सेड, इस सेंस में दे का यूज होता है बिना किसी पहले के नाउन के. ठीक है, तो इस टाइप का सवाल कभी कभी उठता है कि ये प्रोनाउन किस नाउन के लिए बैठ रहा है, तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है. तो कहा जाता है कि इट इज सेड. लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी कहते होंगे. ठीक है, ओके, यस. In the second sentence, there are two more issues for discussion. We can only say two more issues are for discussion. टू मोर इश्यूज फॉर डिस्कशन, उसके बाद क्या बोलेंगे? वर्ब तो आएगा ही, वहीं पर फंस जाते हैं. टू मोर इश्यूज फॉर डिस्कशन, बातचीत के लिए दो और मुद्दे हैं, आर. हाँ, उसके बाद देयर लगा सकते हैं, उसके बाद देयर लगा सकते हैं. हाँ, टू मोर इश्यूज फॉर डिस्कशन आर देयर. हाँ, ये भी हो सकता है, टू मोर इश्यूज आर देयर फॉर डिस्कशन. लेकिन देयर आएगा, देयर छोड़ के नहीं कर सकते हैं. सब्जेक्ट आर बोल के छुट्टी नहीं कर सकते हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. In the next, it is dangerous to play with fire. We can say to play. Oh yes, of course, of course, of course. Just like the next one. Yeah, in that case we don't need. Yeah, that is true. But the point is, for eat, if we don't have some verb playing as adverbs or nouns after to, if we don't have that, then we cannot transform. I mean, it Oh, is yes. dark inside Yes, the room, yes. we cannot do anything. Yes. But if I say it is dark to see inside the room, I can go back to see inside the room. Yes, I mean, we need a to, something of yes. that sort. Yeah. Yeah, in that case you can go back. Yes. In this case you can. No, no. Even Yeah. in the last sentence also we can't. Yeah, It that's rains true, heavily on that's us. Yeah, it rains is a peculiar problem. Okay. What rains? Well, rain rains. हाँ, बारिश बारिश होती है, ये अजीब हो जाएगा ना. So what falls is rain falls, but then what rains? बोलेगा rain rains. That sounds very funny. Okay. Any other question? Actually questions have come in between, so I'll proceed. जिस टाइप के सेंटेंसेस अभी हम लोगों ने देखे हैं, उस टाइप के कुछ सेंटेंसेस हमको बना के सुनाओ. बोट से, जिसमें कि मैं लिखता हूं यहाँ पर बोर्ड पे किस टाइप की चीजें तुमको यूज करना है. टू प्लस वर्ब या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, इसको तुमको नाउन की तरह यूज करना है. ठीक है, और फिर अगला है टू प्लस वर्ब और वही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को एडवर्ब की तरह यूज करना है. ओके, ये दोनों चीज नाउन की तरह और एडवर्ब की तरह यूज करना है. सबका एक एक एग्जांपल हमको सुनाओ फटाफट. कोई सेंटेंस बना? इट इज डिफिकल्ट टू मेक ए बोट. ओके, ठीक है. हाँ, सेंटेंस सुनाओ. It is difficult to make a boat. ठीक है, इसमें एक और भी उसने डाला है, डमी सब्जेक्ट इट को भी यूज किया है. ठीक है, टू मेक ए बोट, हाँ, नाव बनाना मुश्किल है. ठीक है, अच्छा. अब टू मेक को तुम इससे रिप्लेस कर सकते हो, Making a boat. मेकिंग ए बोट. ठीक है, अब सेंटेंस सुनाओ जो जरा. Making a boat is difficult. हाँ, मेकिंग ए बोट इज डिफिकल्ट. गुड. अच्छा, एक और एग्जांपल. There are many boats. इसमें डमी सब्जेक्ट का उसने इलस्ट्रेट किया है. हाँ, देयर आर मेनी बोट्स. सेंटेंस में कुछ दम नहीं हुआ, लेकिन सेंटेंस सही है. ठीक है, और किसी का कुछ सेंटेंस बना है इस टाइप के स्ट्रक्चर को यूज करते हुए? Oh, it is very difficult to row in the opposite direction of the flow.
of course that is true. Okay. कोट से एक सेंटेंस बनाओ. This using these things or dummy subject, there and it. Sir, it is almost impossible to make a sentence with quote. It is almost impossible to make a sentence with quote. Okay, good one. Anything else? Not in this line, proper. Quote. इसमें कोई एक चीज बनाओ. He used to wear coat. He used to wear a coat. सेंटेंस ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इसका एग्जाम्पल नहीं हुआ. ये किसी और चीज़ का एग्जाम्पल हो गया जो कि हम लोग बाद में करेंगे ढंग से. He coated the iron to make it waterproof. He coated the iron to make it. लेकिन इसमें कहाँ पर यूज हो रहा है? अच्छा, तुम एडवर्ब की तरह यूज किए हो. एडवर्ब की तरह. हाँ, टू मेक इट वाटरप्रूफ. ठीक है, इसने कोट को वर्ब की तरह यूज किया है. ओके, ये भी एक सोचने वाली बात है. बहुत सारे वर्ड्स जो हैं कभी नाउन की तरह, कभी वर्ब की तरह, कभी एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं. ठीक है. सोप. सोप से कोई सेंटेंस बनाओ इसमें से किसी एक टाइप का. हाँ हाँ. There are so many soaps. There are so many soaps in the shop for you. Okay. There उसने डमी सब्जेक्ट को यूज किया है. ठीक है. और कोई? ठीक है. अब फ्री फॉर्म सेंटेंस बनाना. ठीक है, मैं वर्ड्स बता रहा हूँ. पहले लाइन के किसी वर्ड से सेंटेंस बनाओ. किसी वर्ड से, पहले लाइन के किसी भी वर्ड से बनाओ. Any type of sentence. Any type of sentence. I was born in August. I was born in August. मतलब क्या है? मैं अगस्त में पैदा हुआ था. ठीक है. They are audible to me. अरे लवली. They are audible to me. Very good. Okay. उनकी आवाज हमें सुनाई दे रही है. Anything else? Sir Arthur Conan Doyle was a great author. सर आर्थर कॉनन डॉयल वॉज ए ग्रेट ऑथर. रेशान, मतलब क्या हुआ इसका? सर आर्थर कॉनन डॉयल वॉज ए ग्रेट ऑथर. क्या मतलब हुआ? सर आर्थर कॉनन डॉयल वॉज ए ग्रेट ऑथर. जो भी है, महान लेखक थे. ठीक है. अब दूसरे लाइन के किसी वर्ड से सेंटेंस. अच्छा ठीक है, बनाओ. An author wrote a very beautiful poem. ऑथर को पोएम के साथ उतना ढंग से बनाते नहीं है. बुक लिखो. बुक बनाओ. एन ऑथर रोट ए वेरी ब्यूटीफुल बुक. ठीक है. अच्छा, दूसरे लाइन के किसी वर्ड से तुम एक सेंटेंस बनाओ. सेकंड लाइन से कोई ढंग का सेंटेंस बनाओ. I never believed a fraud call. ओके, ठीक है, ये सेंटेंस सही है. चलो, यहाँ पर है क्लॉज. ठीक है, और यहाँ पर है पॉज. ठीक है, मैं तुमको एक अच्छा सेंटेंस सुनाता हूँ. Do you know the difference between cat and comma? Or relationship between cat and comma?
Okay. A cat has its claws at the end of its paws, and a comma has its paws at the end of its claws. Okay. So, with this we stop, and we will meet again in the next session. Okay.